علاقے کے کوئی بھی آدمی دل سے محبت نہیں کرتا جی، وہ سوچے گا میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے صرف میرا ہی علاقہ باقی نہیں ہے، میں پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں جا کر کے دین کی خدمت کر سکتا ہوں۔ میرے غریب نواز کہاں کے تھے؟ آ کر کے ہندوستان میں دین کی خدمت کر کے۔ ایسے دل ٹوٹتا ہے، بلاتے ہیں پھر لوگ اٹھ کے جاتے ہیں، نعت نبی پڑھی جاتی ہے، آپ آ کر بیٹھتے ہیں۔ سچ بتائیے میرے بھائی، کیوں آپ صرف منورنجن کے لیے آتے ہیں، دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ کیا سوچ کر آپ آتے ہیں؟ الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب محترم افتخار حسین صاحب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، والدین سے محبت تھی، انہوں نے کہا نہیں اے میرے والد، اے میری والدہ، آپ کی محبت، آپ کی دعا سے آج اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ ایک دن کا انہوں نے انتخاب کیا اور آج انہوں نے الحمدللہ 4 بجے سے کھانا شروع کرایا، لوگ آتے گئے کھاتے گئے، اور ہندوستان کا وہ عظیم لہجے کو جس کو دنیا شاعر اہل سنت بادشاہ ترنم بلبلے باغ مدینہ واصف شاہ ہدا جناب قاری محمد علی فیضی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آج سے تقریباً 16 دن پہلے پونا کی دھرتی پر حضرت بھی تھے، یہ گنہگار بھی وہاں موجود تھا، لیکن میں تقریر کبھی بھی آپ جانتے ہیں لمبی گفتگو کرنے کے قائل نہیں ہوں۔ جس قوم کو مارنا ہو، جس قوم کو تباہ کرنا ہو، جس قوم کو ختم کرنا ہو، اس کے سینے سے علم نکال لیا جائے۔ یہاں پر بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہیں، ماسٹر الحاج سفیر الدین صاحب بیٹھے ہیں، نقیب سدا بہار بیٹھے ہیں، قاری جعفر کلیم تیناج پوری پڑھ رہے تھے، ان کو بھی آپ سن رہے تھے، شعبان رضا کلکتوی کو بھی آپ سن رہے تھے، شاہی رضا کشن گنجوی کو بھی آپ سن رہے تھے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خدا کی قسم، جب جنگ بدر ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو اللہ اکبر، صرف جنگ میں کاٹے اور مارے نہیں جاتے ہیں، ایسا بھی وقت آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کفار ہو یا ادھر کے ہو، وہ لوگ ادھر آ جایا کرتے ہیں، یعنی تلوار چلتی ہے، جو ادھر ہو جاتے ہیں وہ قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ اب قیدی کے ساتھ اسے غلام بھی بنا کر رکھا جاتا ہے، اسے مار بھی دیا جاتا ہے، اس کے گلے میں پھانسی بھی دیا جاتا ہے، پھانسی بھی دی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنگ بدر جب ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو صحابہ لڑے ہیں، اس میں کچھ کفار مصطفیٰ جان رحمت کے جو ہے ادھر آ گئے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفاروں کو لے کر آنے کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے، ان کے ہاتھوں میں جو ہے ہتھکڑیاں ڈال دی جائے، ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے۔ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، ایک بات بتاؤ، تم میں کوئی پڑھے لکھے ہو؟ کہا کیا بات ہے یا نبی اللہ، ہم تو مجرم ہے، یا نبی اللہ ہم تو قیدی ہے، یا نبی اللہ ہم تو غلام ہے۔ آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا، تم میں سے کوئی پڑھا لکھا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے جو ہے رہائی یہ ہے کہ میرے صحابہ کو وہ تعلیم دے دے، اسے رہائی مل۔ خدا کی قسم، اگر یہی بات عالم اسلام کے الگ جگہوں پر کی جاتی، علماء کرام کی جو ہے جھرمٹ میں کی جاتی، پڑھے لکھے لوگوں کے مجمع میں کی جاتی، تو وہ لوگ کہتے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سوچ کتنی اونچی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی پڑھا لکھا ہے تو 10 صحابہ کو لے لو اور تم جو علم سیکھے ہو انہیں سکھا دو۔ جب میرا بیٹا علم سیکھ لے گا، جب میری بیٹی علم سیکھ لے گی، جب میرا نوجوان علم سیکھ لے گا، جب میرا دوست علم سیکھ لے گا، باتیں بنانا تو بہت اچھا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے یہ پاگل ہو گیا ہے، اتنا بڑا جلسہ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سن لے، ماں سے بیٹے کا محبت، باپ سے بیٹے کی محبت اللہ رب العزت نے تیار کی ہے، اللہ نے ایسا دوست جو ہے محبت برقرار کر دی ہے۔ دنیا میں ایسی محبت کہاں ملتی ہے؟ باپ سے بیٹے کی محبت برقرار آئی۔ انہوں نے کہا محمد علی فیضی کو میں نے سنا ہے آج آپ کو آنا ہوگا، 26 تاریخ کو آنا ہوگا، میرے دل کی دنیا بدلے گی، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہو
ये मेरे वालिदैन की दुआओं की बरकत से हो। आज तुम्हें पता नहीं है, आज तुम्हें मालूम नहीं है वालिदैन होते कैसे हैं। आज से चंद दिन पहले दीघा के इलाके में मैं पहुंचा था, वहां पर एक बूढ़ी औरत मुझसे कहती है, बेटा आप जरा करीब आइए और मुझसे दो चार बातें कीजिए, आप तारीख पढ़ो। तुम्हें पता नहीं है ये वालिदैन की अजमत क्या है, ये माँ बाप की अजमत और रिफात क्या है। अल्लाह अकबर। सुनो, आज अल्लामा साहब हो जाते हैं तो माँ के साथ सही बर्ताव नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचता है मैं अल्लामा साहब हो, मैं मुफ्ती साहब हो, मैं कारी साहब हो, मैं शायर साहब हो, मैं मुकर्रिर साहब हो, मैं इंजीनियर साहब हो, मैं कलेक्टर साहब हो, मैं डॉक्टर साहब हो। ऐ नौजवान सुन ले, जब एक परिंदा आसमान की तरफ परवाज करता है तो वो अपने परों को झाड़ता है और आसमान पे परवाज करता है, लेकिन वो जब जमीन पे आने लगता है तो परों को समेट लेता है। जब घर से बाहर निकल जाओ तो अपने आप को मुफ्ती कहलवा ले, जब घर से बाहर निकल जाओ अपने आप को इंजीनियर कहलवा ले, जब घर से बाहर निकल जाओ अपने आप को डॉक्टर कहला ले, जब घर से बाहर निकल जाओ अपने आप को अल्लामा कहला ले, जब घर से बाहर निकल जाओ अपने आप को खतीब कहला ले, लेकिन जब घर वापस आए ना तो अपने परों को समेट ले। माँ बाप के सामने एक बेटा, माँ के सामने एक बेटा बन जाओ, बाप के सामने एक बेटा बन जाओ। आज कहते हैं लोग बाप के सामने कैसे बात की जाए। मैं कहता हूं 3 साल के बच्चे के साथ आप कैसी बातें करते हैं। आप कहते हो मंजर नवाज मेरे माँ बाप के ख्यालात पुराने हैं, मेरे माँ बाप पुराने ख्यालात के हैं, पुरानी बातें करते हैं। ऐ मेरे भाई तेरे बेटे को बोलने का शऊर नहीं है, तो उसके लिए जो है घुटनों पे भी चलता है। तेरा बेटा उल्टा बोलता है, उसे भी तू सुन लेता है, कामदे पर बिठाता है। क्या मेरे नबी की जिंदगी को फरामोश कर दिए हो? तुम कहते हो माँ के साथ मैं क्या बात करूं, ये पुराने ख्याल के हैं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली है, हजरत इमाम हसन और हुसैन जब गली में दौड़ते हैं तो मेरे मुस्तफा उनके पीछे दौड़ा करते हैं ताकि दुनिया को जीने का सलीका आ जाए। आज माँ से बात करने का सलीका तेरे पास नहीं। सुनिए, बड़ी गौर से सुनिएगा। कार्तिक भाई आवाज बढ़ा दीजिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह जैसा माहौल पहले था वैसा माइक का जो है इंतजाम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंद बातें करूंगा, मैं आपके जज्बात से खेलना नहीं चाहता हूं। मोहम्मद अली फैजी साहब को इतनी दूर से दावत देकर बुलाया गया है, हजरत को सुनना है। सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि मैं आपके गांव के करीब का हूं, इलाके का हूं। कभी भी मेरा से आपका साबिका पड़ता है, लेकिन मेरे भाई एक बात सुनिएगा। जब वो बूढ़ी औरत मुझे बुलाती है ना, जब मैं उसके घर पे गया तो वो बूढ़ी औरत कहती है बेटे आप तकरीर के लिए आए हो? मैंने कहा जी चाची मैं तकरीर के लिए आया हूं। कहा कहां रहते हैं आप? मैं कहा मैं एमपी में रहता था, अभी बंगाल में रहता हूं। उस बूढ़ी औरत ने कहा था ये जो खाने का इंतजाम किया है, ये 1000 लोगों को दावत जो दिया है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा बेटा ये किसी और का बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। 1000 लोगों को दावत किया है खाने की। मैंने कहा आपका बेटा बड़ा सखी है, आपका बेटा बहुत दयालु है, आपका बेटा मज़हब इस्लाम के फर्दों से मोहब्बत करता है। चाची ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू थे। कहा मंजर नवाज साहब बेटा आप आए हो, सुनो मेरा बेटा 1000 लोगों को दावत करके खाना तो खिलाने के लिए लोगों को बुलाया है, लेकिन जब मेरा शोहर इंतकाल हो गया तो मेरे बेटे ने कहा माँ तेरी पान का खर्चा मैं उठा नहीं सकता हो, तेरी चाय का खर्चा उठा नहीं सकता हो। आज मेरा बेटा 1000 लोगों को बुला करके खाना खिला रहा है। आज उत्तर दिनाजपुर का जो है सर्वे करके देख लीजिए, हर घर का जायजा लेकर के देखिए। अगर एक गांव में 500 घर है तो तकरीबन 50 घर ऐसे हैं जो बूढ़े माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं, दर दर की ठोकरें खाया करते हैं। माँ चूल्हे के घर में सोया करती है, बाप चूल्हे के घर में सोया करता है, बेटा संगे मरमर के मकान में रहता है। वो पूरी औरत कहती है बेटा, और आगे सुनिए एक बात मुझे ये बताइए। मैंने कहा क्या कहना चाहती है? उसने कहा था बात ये कहना चाहती हो बेटा क्या बुढ़ापे में माँ बाप बच्चे के दुश्मन हो जाते हैं? मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि माँ का बेटा दुश्मन हो जाए, बेटा माँ का दुश्मन हो जाए। कहा बेटा यही तो है कि माँ बुढ़ापे
में आ जाए, माँ बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए तो बच्चा उससे दुश्मनी मोड़ता है। मैंने कहा क्या मतलब है? वो बूढ़ी औरत कहती है जब मेरा बेटा मार्केट से आता है, मेरा बेटा दुकान से आता है, मेरा बेटा फल फ्रूट की थैली लेकर के आता है, तब मेरा बेटा जो है अपने बाल बच्चों के लिए कोई सामान खरीद कर लाता है तो मुझे छुपाकर अपनी बीवी को देता है, अपने बच्चे को देता है। क्या मैं बुढ़ापे में आ गई हो? क्या मेरे बेटे के में दुश्मन हो गई हो तो सामान मुझसे छुपा के रखते हैं? मेरा दिल भी फटा जा रहा था। मैंने कहा खुदा की कसम, ऐसा बेटा 10,000 लोगों को नहीं 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाए, 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाए, 1 करोड़ लोगों से मोहब्बत करे। अगर तेरे घर के बूढ़े माँ बाप तुझसे नाराज है तो मदीने के मुस्तफा नाराज है, तुझसे मेरा खुदा। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बहुत अफसोस होता है पूरे उत्तर दिनाजपुर में ये बीमारी आ चुकी है। ऐसी बीमारी हो गई है कि माँ को छुपाकर बच्चा सामान लेकर के आता है, माँ को छुपाकर बेटा जो है अपने बच्चों के लिए सामान लाता है। क्या कुरान को पढ़ना भूल गए? क्या मेरे मुस्तफा की हदीस को पढ़ना भूल गए? आज उत्तर दिनाजपुर में ये भी बीमारी नजर आ रही है। कोई बेटा अपनी माँ से अपने बाप से 5-5 साल हो जाते हैं लेकिन बात तक नहीं करते हैं। एक नौजवान मुझसे कहता है मंजर नवाज साहब, मैंने कहा क्या हो गया? कहा बात इतनी सी है, मेरा बाप जो है मुझे जमीन से बेदखल कर दिया है, घर से बेदखल कर दिया है, कारोबार से बेदखल कर दिया है। मैंने कहा कोई गलती तो तूने की होगी इसीलिए तेरे बाप ने बेदखल किया है। उसने कहा कोई गलती नहीं है लेकिन मेरे बाप ने मुझे घर से बेदखल कर दिया है। ऐ मुसलमान जरा गौर तो कर ले, अल्लाह अकबर। मैंने कहा एक बात बता, तेरे बाप ने जमीन से तुझे निकाल दिया है, कभी तू अपने बाप के करीब भी गया है? अपने बाप को मनाने के लिए गया है? पीर नाराज हो जाता है तो पीर के खान का चला जाता है। अगर तुझसे तेरा दोस्त नाराज होता है उसके हवेली तक पहुंच जाता है। अगर तेरे माँ बाप तुझसे रूठ जाते हैं तो उसकी दहलीज पर जाने के लिए तेरे पैरों में ताकत क्यों नहीं होती है? तेरे समाज में, तेरे जहन में यह ख्याल क्यों नहीं पैदा होता है ये मेरे माँ बाप है? मेरे नबी ने फरमाया था तेरे घर में जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अगर तेरे घर में तेरे वालिदैन तुझसे राजी है तो तेरा घर दुनिया ही में जन्नत है, और अगर तेरे वालिदैन तुझसे नाराज है तो दुनिया ही में तेरा घर जहन्नम है। ऐ मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जरा गौर तो करो। मैं उस नौजवान से कहा कम से कम अपने बाप से मिल लिया करो, ईद में कम से कम मिल लिया करो। जब ईद आती है तो तुम दोस्तों से मिला करते हो, रफीकों से मिला करते हो, शफीकों से मिला करते हो, हम दर्दों से मिला करते हो, कभी अपने बाप से भी मिल लिया करो। उसने कहा सुनिए, जमीन नहीं मिलती ना मिले लेकिन बाप से नहीं मिलूंगा। मैंने कहा यही अकर तेरी खत्म होने वाली है। अरे तू अपने आप को बड़ा कहता है, कुरान कहता है खुलिकल इंसानो दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया है। इंसान जरा गौर तो कर ले, तेरी औकात क्या है, तेरी बेसात क्या है, तेरी कदर मंजिलत क्या है? ये सांस जो बाहर से तुम अंदर लेते हो, अंदर से बाहर फेंकते हो, अगर ये सांस रुक जाए तो तेरी मौत हो जाती है, फिर तेरी कोई हकीकत नहीं रहने वाली। जब तेरी मौत तेरे इतने करीब है तो गुरूर क्यों करता है, तकब्बुर क्यों करता है, नाज क्यों करता है? मैंने कहा नौजवान तो इस बार कम से कम ईद के दिन अपने बाप से मिल लिया कर। उसने कहा कुछ भी करूंगा लेकिन बाप से नहीं मिलूंगा। मैंने कहा मैं इतनी दूर से आया हूं, मेरी बात मान ले यार, मेरे नबी के तू चाहने वाला है, खुदारा इस बार अपने बाप की बारगाह में चले जाना। उसने कहा ठीक है देखूंगा। ईद आई है, मैंने उसको समझाया था ईद आ जाएगी, ईद की नमाज पढ़ के अपने बाप के पास चले जाना, बूढ़े बाप के करीब जा करके अपने बाप को सलाम करना। अगर तेरा बाप रूठ जाए ना तो तेरे बाप को मनाने की कोशिश करना। ऐसी बात नहीं है कि तेरा बाप अगर झिड़क दे तो तू लौट के आ जाए, नहीं, बल्कि अपने बाप को मनाने की कोशिश करना। वो नौजवान ने वो काम किया है, ईद की नमाज पढ़ करके अपने बाप के पास गया है। 5 साल से जिस बाप से बात नहीं की है उस बाप की दहलीज पर पहुंचा, जिस बाप ने जमीन से बेदखल किया था, कारोबार से बेदखल किया था, अपने खेत खलियान से बेदखल किया था। उसका बेटा बाप के पास जाता है, ईद की नमाज पढ़कर जाने के बाद अपने बाप को सलाम करता है। जब बाप को सलाम करता है तो बाप बेटे के चेहरे से अपने रुख को फेर लेता है। बेटा थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद
बाप और बेटे की मोहब्बत अल्लाह ने इतनी मजबूत बनाई है, बेटा खड़ा रहता है, दूसरे के बेटे के गाल पे एक चाटा मारोगे ना तो 6 महीने तक तेरे आंगन में नहीं आएगा, लेकिन अपने बेटे को एक चाटा नहीं 10 जूते भी मार दे, लेकिन आधे घंटे के बाद वो बेटा पलट कर तेरे पास आ जाएगा। ये बेटे बाप की मोहब्बत। आज लोग कहते हैं हजरत बात इतनी सी है, हमारे इलाके में हाल यह है, बेटा बाप का नाफरमान हो गया है, बीवी शोहर का नाफरमान हो गई है। मैं कहना चाहता हूं पहले हलाल खा के देख ले, अगर तू हलाल खाएगा तेरी बीवी हलाल खाएगी, तेरे आने वाला बेटा नबी का भी वफादार होगा, माँ बाप का भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, हजरत कारी बंज़र नवाज साहब क़िबला। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अपने वालिदैन की इज्जत किया करो, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, एहसान के साथ पेश आओ, अपने वालिदैन को उफ तक न कहो, कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। आज हम इल्म से दूर हैं, टाइम मिल जाता है कैरम बोर्ड खेलने लगते हैं, टाइम मिल जाता है पबजी गेम खेलने लगते हैं, टाइम मिल जाता है फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे लगे रहते हैं, टाइम मिल जाता है तो बियर बार की तरफ चले जाते हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी है लेकिन सत्ते की दुकान में मुसलमान का बच्चा मिल रहा है, मुसलमान के वो बूढ़े लोग मिलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ चाचा तू वहां पे सत्ते की दुकान पे क्या कर रहा था? वो कहता है मंसर नवाज एक बार लॉटरी लग जाएगी, करोड़ों की दौलत आ जाएगी। मैंने कहा ऐसी दौलत पे लानत हो, अरे ये दौलत तेरे पास रहने वाली नहीं है। जब इंसान की रूह निकल जाती है, सांसें बंद हो जाती है, आंखें बंद होती है, सबसे पहले जो उसका साथ छोड़ती है उसकी वो दौलत साथ, जो दौलत तेरे साथ पहले छोड़ दिया करती है, उसी दौलत के लिए यकीन ना आए तो कल मेरे साथ चलना, मैं हाथी मारा में दिखा दूंगा कितने बूढ़े लोग सत्ते खेल रहे हैं, मेरे बच्चे शराब के अड्डे में मिलते हैं, लेकिन उलमा की तकरीर कौन सुनेगा, मुफ्ती साहब की तकरीर कौन सुनेगा, बड़े बड़े अकाबिर की तकरीर कौन सुनेगा? हमें तो भूत सवार है, हम आएंगे नाते नबी सुनेंगे चले जाएंगे। मैं कहता हूं नाते नबी भी सुनो लेकिन तकरीरें भी सुना करो। अरे मेरे भाई भूखे रहना लेकिन अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाना। मुझसे किसी ने कहा था मास्टर साहब, मुझसे किसी ने कहा मंसर नवाज तेरे पास पैसे तो हैं, अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? तो मैंने उससे कहा था मेरे भाई जो रास्ता तू दिखा रहा है वो रास्ता मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरा दिल कहता है पहले मेरा बच्चा आलिम दीन हो जाए। अगर मेरा बेटा आलिम दीन होगा सब करेगा, बियर पार की तरफ कभी नहीं, शराब के अड्डों में मेरा बेटा नहीं जाएगा। अगर मेरा बेटा आलिम दीन बन गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सारे गुनाहों से वो बाज आने की कोशिश करेगा। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आप सुनने की बात है, थोड़ी देर आगे बात गुफ्तगू निकल आई है, सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। वो नौजवान जब अपने बाप के करीब गया, बाप को सलाम किया तो बाप ने रुख फेर लिया, बाप रुख फेर लिया है। मैंने उससे कहा था तेरा बाप अगर रुख फेर लेना तो लौट के मत आना, रुक जाना। अल्लाह अकबर। वो नौजवान रुक गया। थोड़ी देर के बाद फिर उसका बाप पलट कर देखा, मेरा लाडला खड़ा है, मेरा बेटा खड़ा है। बेटा आगे बढ़ा, बढ़ करके बाप को सीने से लगाया, बाप को सीने से बेटा लगा, बेटे के सीने से बाप लगा, एक दूसरे को चिमट गए। खुदा की कसम बाप के आंखों से भी आंसू जारी थे, बेटे के आंखों से भी आंसू जारी थे। बेटे से मैंने कहा था जब सीने से सीना मिल जाएगा ना तो नबी पे दुरूद पढ़ते रहना, आका पर दुरूद पढ़ते रहना। उस नौजवान ने दुरूद पढ़ना शुरू किया। जब सीने में गर्मी पैदा हुई तो बेटे के सीने की गर्मी बाप के सीने में पहुंची। जब सीने में पहुंची ना तो बाप के आंखों से मोटे मोटे आंसू के कतरे गिरने लगे। अल्लाह अकबर। बाप बेटे से थोड़ा जुदा हुआ, फिर बेटे का चेहरा देखकर बाप ने क्या कहा था वो सुनो। बाप ने कहा था मेरे लाल ये जमीन मेरे जो है मेरा खजाना है, तुम सोच रहे हो ये दौलत मेरी है, अरे बेटा ये सोच रहे हो ये बंगला मेरा है, तुम ये सोच रहे हो ये मेरी दौलत है, नहीं नहीं। अरे बेटा अगर मेरी दौलत कुछ है तो मेरी दौलत तू है, मेरी आंखों का तारा है तो वो तू है, ये मेरी दौलत नहीं, मेरी दौलत तू ही तू है। जब बाप को मना लोगे ना
तो बाप बिस्तर में कभी ऐसा मौका मिला 24 घंटे के अंदर 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए भी निकाला? कोई निकाला? चचा बोलिए, कभी ऐसा हुआ है कि बिस्तर में आपका बेटा चला गया हो और जाकर के बिल्कुल अपने बच्चों के लिए जैसा सोच रहा था, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी वैसा फीलिंग रखता है, वो जो सुनाएगा मैं सुनूंगा? होता नहीं, बच्चा जो सुनाएगा वो सुनता है, जैसा सुनाएगा वो सुनता है। मेरे माँ बाप जैसा सुनाएंगे मैं सुनूंगा। थोड़ी देर उनके पैरों के पास बैठ जाया करो। खुदा की कसम, तेरे वालिदैन हाथ उठाकर दुआ करेंगे ना, हाथ नीचे बाद में आएंगे, पहले रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाएगी। खुदारा अपने हालात को बदलने की कोशिश करें। उत्तर दिनाजपुर में जितने जलसे होते हैं पूरे भारत में इतना जलसा नहीं होता। जी किबला, पूरे उत्तर दिनाजपुर में जितने जलसे होते हैं पूरे भारत में इतना जलसा नहीं होता। लेकिन जहां लोग थे वहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती जुल्फकार अली रशीदी कहते थे, जहां से चले थे वहीं के वहीं हैं, जहां से चले थे वहीं के वहीं हैं, कोहलू के बैल से कम तो नहीं है। कोहलू का बैल जहां से शुरू करता है वहीं घूमता है, वहीं घूमता है, वहीं घूमता है। दिन को लगा दीजिए, रात तक वहीं के वहीं घूमता है। यही हालात आपके और हमारे हैं। इतनी तकरीरें हो रही है लेकिन हालात हमारे बदले नहीं। हम जो गुनाह कल कर रहे थे उससे ज्यादा गुनाह अब कर रहे हैं। पहले हमारे इलाके में लोग मोहब्बत से कहीं जाया करते थे, किसी से मिला करते थे। आज जो भी मिलता है अपनी मफाद के बलबूते पर मिलता है। किसी को कुछ कहता है तो अपने दिल में किसी न किसी मुफाद के लिए वो उससे बातें करता है। खुदारा किसी से मिलो तो मुस्तफा की मोहब्बत सीने में रखकर मिलने की कोशिश किया करो। इलाके के हालात को बदलने की कोशिश करो। ऐ नौजवानों, तुम्हारी जवानी हमेशा रहेगी नहीं। मेरे चाचाओ, आपकी जो है उम्र कट रही है। कब आंखें बंद हो जाए, कब सांसें रुक जाए, तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। कम से कम अपनी आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारियां किया करो। मेरी माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ और बहनों, तुम पर्दे में रहने की कोशिश करो। फातिमा की सच्ची कनीज़ बन जाया करो। आज इलाके में लोग कहते हैं इतना चहलुम का प्रोग्राम होता है, ये जो फातिहा पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, ये क्या पहुंचता है? मैं कहता हूं इमाम गजाली तसव्वुफ के इमाम की बारगाह में पहुंचो। इमाम गजाली आज भाई को भाई से मोहब्बत नहीं रहा, आज दोस्त को दोस्त से मोहब्बत ना रहा। लेकिन देखें तो सही, खुदा की कसम, इमाम गजाली तसव्वुफ का इमाम है। इमाम गजाली कब्रिस्तान जाते हैं और इस कर्जो गायत से जाते हैं कि मैं देखूं कि कब्र के मुर्दों के हालात कैसे हैं। जो लोग बैठे थे अभी तक बैठे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। पतान जो होता है वो उड़ जाया करता है, धान जो होता है वो बैठा रहता है। इनका यह मकसद नहीं था कि मैं 80,000 रुपए के जानवर ले लूंगा और लोगों को खिला दूंगा चले जाएंगे। इनका यह मकसद था कि मकसद यह है कि रात में जलसा होगा और मेरे जलसे में आने वाले अगर एक एक मर्तबा सूरह अखलास पढ़ देगा तो मेरे वालिदैन की अल्लाह मग़फ़िरत। इमाम गजाली तसव्वुफ के इमाम है। आधे घंटे की तकरीर हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट में बात मुकम्मल कर दें। इमाम गजाली तसव्वुफ के इमाम थे, कब्रिस्तान जाया करते। कहां जाते? कब्रिस्तान जाते, और जाने का मकसद यह होता कि कब्र के मुर्दों के हालात को मालूम। कितने दिन से खाना नहीं खाया, कोई परवाह नहीं। जिंदगी पढ़ो ना। मेरे मुस्तफा जाने रहमत बैठे हैं, हजरत आयशा बैठी है, अल्लाह अकबर। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मेरे आका की प्यारी बेटी हजरत फातिमा आने लगी। आज आंचल में औरतें सोने चांदी को बांधती है, रसूल पाक की बेटी फातिमा आंचल में कुछ बांध कर, चादर में कुछ बांध कर अपने बाबा की तरफ आ रही थी। हजरत आयशा कहती है, या नबी अल्लाह, ये फातिमा आ रही है, लेकिन पहले वो तो कुछ नहीं कही कि मैं आ रही हूं, इत्तला नहीं दी है। मेरे आका ने फरमाया आने दो। जब रसूल पाक की बेटी फातिमा करीब आई ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा कैसे आना हुआ? बाबा
آپ سے ملنے کا دل کر رہا تھا، میں آ گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے بابا ایک کام سے آئی ہوں۔ کیا بات ہے بیٹی فاطمہ؟ میرے آقا سے فاطمہ کہتی ہے، رسول پاک کی بیٹی کہتی ہے، یا نبی اللہ 3 دن تک ہمارے گھر میں چولہے نہیں جلے، ہمارے بچے بھوکے تھے، علی بھوکے تھے، میں بھوکی تھی۔ آج حضرت علی تھوڑا سا جو لے کے آئے تھے اور اس جو کو میں پیس کر روٹی بنائی اور ساری روٹیاں بچے اور حضرت علی کھائے، ایک روٹی بچ گئی تھی۔ یا نبی اللہ میرے دل نے خیال کیا، جیسے ہی لقمہ اٹھانا چاہا تو میرے دل نے کہا کم سے کم بابا کا بھی میں خیال کر لوں، میرے بابا محمد کی بارگاہ میں جاؤں، یہ روٹی آدھا میرے بابا کو کھلاؤں، آدھی روٹی میں کھاؤں، اسی لیے میں آئی ہوں۔ بابا میں 3 دن کی بھوکی ہوں، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ میں یہ روٹی اکیلے نہ کھاؤں، آپ کو لے کر کے کھاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو 3 دن کی بھوکی ہے، تیرے بابا محمد 5 دن کی بھوکی۔ لوگوں پیٹ بھر کر کھاتے ہو؟ کبھی تصور ہوا؟ بیٹی کی شادی دلانے کے بعد بیٹی کو دیکھنے بھی نہیں جاتا، موٹر سائیکل جو دے دیا ہے، 4 ویلر گاڑی جو دے دیا ہے، اب بیٹی کو کون پوچھتا ہے اور کون بیٹی اپنے باپ کو پوچھنے آتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دن کا میں بھوکا ہوں۔ خدا کی قسم فاطمہ اس قدر بلک بلک کر رونے لگی کہ میں سوچتی تھی میں زیادہ دن کی بھوکی ہوں، میرے بابا محمد رسول اللہ تو 5 دن کے بھوکے ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا اسے غور سے سنیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بیٹی فاطمہ کیوں روتی ہو؟ ایک پل کا تو فاصلہ ہے بیٹی، ایک پل کا فاصلہ ہے۔ بابا کیا مطلب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ جب آنکھ بند ہو جائے گی، جنت کے تمام میوے، جنت کے تمام فروٹ، جنت کے تمام تر خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کے لیے کھولنے والے۔ یہاں آج بھوکے رہتے ہیں، میری امت میں جب کوئی آدمی بھوکا رہے گا تو میری زندگی کو پڑھے گا کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ مصطفیٰ بھوکے تھے، میں ان کا غلام ہوں، میں بھی بھوکا رہا۔ لوگوں آج تو کسی کا خیال کوئی نہیں کرتا، وقت نہیں ہے۔ امام غزالی تصوف کے امام ہے، اللہ اکبر فرماتے ہیں جب میں قبرستان پہنچا پہلی قبر پر نظر پڑی تو اللہ اکبر، پہلی قبر کے مردے کی جو قبر تھی وہ روشن تھی، تابناک تھی، اجالا تھی، قبر کے مردے چمک رہے تھے۔ دوسری قبر پر پہنچے وہ بھی قبر منور تھی، تابناک تھی۔ تیسری قبر پر پہنچے، تیسری قبر کے مردے بھی روشنی میں تھے، اللہ اکبر، قبر چمک رہی تھی۔ آخری قبر پر جب امام غزالی پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ قبر میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، قبر کے مردے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آج سے چند دن پہلے آپ نے بھی سنا تھا قمر سال کے قریب میں اس قبرستان میں مرنے والا مردہ چلا رہا ہے، لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ میرے بھائی تیرے حالات اچھے ہیں کیا؟ تیرے اخلاق اچھے ہیں کیا؟ تیرے دامن میں نیکی ہے کیا؟ تیرے پاس عبادت کا خزانہ ہے کیا؟ تیرے پاس مصطفیٰ کی محبت ہے کیا؟ تیرے پاس علماء کی تعظیم ہے کیا؟ تیرے پاس بزرگوں کی جو ہے محبت ہے کیا؟ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس قبر میں ہر کسی کو جانا ہے، اس تاریکی والی قبر میں، کیڑے مکوڑوں کے گھر میں ہر کسی کو جا کر کے جو ہے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں آخری قبر کے قریب پہنچا تو قبر کے مردے چیخ رہے تھے، قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، قبر میں تاریکی تھی۔ اللہ اکبر، تصوف کے امام نے فرمایا اے قبر کے مردے تجھ پر کب سے عذاب ہو رہا ہے؟ قبر کے مردہ کہتا ہے اے تصوف کے امام امام غزالی، جس دن سے مجھے قبر میں لٹایا گیا ہے اس دن سے لے کر آج تک میری قبر میں آگ کے شعلے بھڑکا دیے گئے ہیں، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مجھے آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا تصوف کے امام بھی کچھ کہتے، وہ مردہ کہتا ہے امام غزالی دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، کم سے کم ایک خیال کریں، ایک میری ماں ہے، جب میں 3 سال کا تھا یا 2 سال کا تھا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ دی تھی اور پھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، دوسری نکاح کر لی، اس کے بعد دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ یتیم کا حامی و مددگار کون ہوتا ہے؟ یتیم کو کون پوچھتا ہے؟ یتیم کو اگر کوئی کہتا ہے تو نکر
पे, चौराहे पे वो यही कहता है, जिसका बाप नहीं उसका बेटा बिगड़ा हुआ नजर आता है, जिसका बाप नहीं उसका बेटा बेलगाम होता है। ऐ मुसलमान, अगर तू अपने बेटे से प्यार करता है, किसी यतीम के बेटे से भी प्यार करके देख लिया होता, उसे भी रास्ता दिखाया होता। तेरे पास रास्ता दिखाने का वक्त नहीं है। सुने, इमाम गजाली फरमाते हैं, जब वो मुर्दा कब्र में चीख रहा था और कह रहा था मेरी माँ है, फलाना गांव में है, मेरी माँ से जाकर कहिएगा कि मेरी माँ मेरे नाम पर एसाले सवाब, आखिरी बात, एसाले सवाब करे। अल्लाहु अकबर। इमाम गजाली ने लिख लिया, हथेली पे सुबह का सफेदा फैला, उस गांव में पहुंचे, फरमाया वो उसकी माँ, ये फलाना औरत का नाम जो है, इसका घर कौन सा है? किसी ने कहा ये मकान है। इमाम गजाली तसव्वुफ के इमाम पहुंचे, पहुंचने के बाद वो खातून को बुलाया, उसका शोहर भी करीब आया। इमाम गजाली फरमाते हैं, सच बताओ तुम्हारे पहले भी कोई औलाद है? उसने कहा नहीं। कहा कि सच बताओ। उसके शोहर ने कहा बीवी घबराओ नहीं, सच बताओ, क्या मुझसे पहले भी तेरी शादी हुई थी? उसने कहा हाँ मेरी शादी हुई थी, मेरा शोहर इंतकाल हो गया था, मेरे 2 साल 3 साल का बच्चा था, मैंने उसे छोड़ दिया था। इमाम गजाली कहना क्या चाहते हैं? इमाम गजाली ने फरमाया था, सुनो, तेरा बेटा दुनिया में रहा, उसका बाप नहीं था, तू भी छोड़कर आ गई थी, बेसहारा हो गया था, दर दर की ठोकरें खाता रहा, गलत लोगों की सोहबत में बैठता रहा, तेरा बेटा शराब भी पिया, तेरा बेटा ज़िना भी किया, तेरा बेटा गुनाह भी किया, तेरा बेटा गुनाहगार बनकर और जिंदगी में सारे गुनाह करके जब जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो तेरे बेटे की रूह निकल गई। जब वो मरकर कब्र में पहुंचा तो तेरे बेटे की कब्र में आग के शोले भड़काए गए हैं, तेरा बेटा कब्र में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मैं कब्र के हिमायत जानने गया था तो तेरे बेटे ने तेरा पता बताया था। अल्लाह अकबर। वो खातून की आंखों में आंसू थे, कहते हैं इमाम गजाली तसव्वुफ के इमाम क्या कहना चाहते हैं, अब मैं क्या करूं? इमाम गजाली ने फरमाया, अपने बेटे के नाम पर एसाले सवाब, क्या कहा? अपने बेटे के नाम पर एसाले सवाब करो। इफ्तिखार भाई एसाले सवाब की महफिल सजाए हैं, एसाले सवाब करो। वो कहती है हुजूर ठीक है आज मैं करूंगी। शाम हो जाती है, रात होती है, वो खातून और उसका शोहर पूरे गांव के लोगों को दावत करते हैं, गरीबों को बुलाते हैं, गांव के उलेमा को बुलाते हैं, नाते नबी पढ़ी जाती है, किताबें पढ़ी जाती है, आका की अहादीसें बयान की जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है। उसके बाद जो है उस मरहूम के नाम पर एसाले सवाब कर दिया जाता है। तसव्वुफ के इमाम इमाम गजाली जब दूसरे दिन कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो पहली कब्र के मुर्दे भी चमक रहे थे, दूसरी कब्र के मुर्दे भी चमक रहे थे, तीसरी कब्र के मुर्दे के अहवाल भी अच्छे थे, आखिरी कब्र में जब पहुंचे ना तो आग के शोले भड़कना बंद हो गया है, जन्नत की खिड़कियां उसकी कब्र में खोल दी गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अजाब को उठवा लिया है। खुदा की कसम, तसव्वुफ के इमाम जब उसकी कब्र के करीब पहुंचे थे तो वो मुर्दा कहता है, ऐ इमाम गजाली, अल्लाह आप पर करोड़ों एहसान करे, आपने मुझ पर एहसान किया है। मेरी माँ से आपने कहा था, मेरी माँ ने जो एसाले सवाब की महफिल सजाई थी, इसके बदौलत अल्लाह ने मेरे गुनाह को माफ फरमा दिया है। इससे सबक मिलता है, एसाले सवाब की महफिल करना बहुत जरूरी है। सरकारी आला हजरत फरमाते हैं, जब बाप की कब्र में बेटा जाता है, माँ की कब्र में बेटा जाता है और उसके पांव पे खड़े होकर कुछ नहीं जानता, हाथ उठाकर रो रो कर दुआ करता है, मौला तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है, मौला मेरे बाप ने सबको दिया है, मेरे बाप इस दुनिया से चला गया है, मौला मैं इस बाप की जो है अल्लाह अकबर मग़फ़िरत की दुआएं करता हूँ। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत को रहम आ जाता है, रब फरमाता है फरिश्ते गवाह हो जाओ, देखो मेरा बंदा गिरिया गुजारी करता है, अपने बाप और अपने माता के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता है। जिसका बेटा मुझे रहमान कहता हो, रहीम कहता हो, मेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता हो, मैं उसके बाप को आजाब नहीं दे सकता। फरिश्ते तुम गवाह हो जाओ। क्या मतलब है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर कोई एसाले सवाब की महफिल सजाए तो कभी भी तनकीदें मत करना,
یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تمہیں توفیق دے دے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ میرا خدا نہ چاہے، جب تک کہ میرا پروردگار نہ چاہے، جب تک کہ ہمارا خالق نہ چاہے۔ پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسی محفل سجائے اور ان کے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ میرے بعد مناظر اہل سنت